Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Floral Bio Canvas. Today we are going to discuss about TS of anther and microsporogenesis along with formation of pollen grain. Now when we see that pollen grain formation होता है anther में और anther को हम consider करते हैं as a male reproductive part. Now we know that the male reproductive whorl of a flower is known as androecium और उसके इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं स्टेमन. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. तो स्टेमन इज हैविंग एंथर connected to the filament with the connective tissue. Anther is the place where the formation of pollen grain takes place. Now, when we see anther, तो anther is bilobed. It is having two lobed और हर lobe में there are two theca. This is termed as diathecous. Therefore, there are altogether 4 pollen sacs we can see and ये pollen sac में pollen grain form होगा. It is also termed as tetrasporangia. Tetra means 4. Now when we see the tiers of anther, that is transverse section, after taking the transverse section of anther, तो हम anther के section में बहुत सारे उसके layers देख पाते हैं and हमने देखा कि एंथर बाइलोब्ड है. देयर आर 2 लोब्स और हर लोब में 2 थीका है. तो उस हिसाब से उसके पास 1 2 3 4 पॉलन सैक हुआ और इस पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. ये माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनियस टिश्यू है. स्पोरोजीनियस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, सो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड. इट इज़ डिप्लॉइड जो कि अंडरगो करती है रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस डिवीजन, जिससे कि ये 4 सेल्स फॉर्म करती है इन टेट्राड. वी विल बी सीइंग इन फर्दर इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, तो अभी हमें पता चला कि देर आर 4 पॉलन सैक और हर पॉलन सैक में देर आर डिफरेंट लेयर्स. लाइक वो डिफरेंट लेयर एंथर में है एंड हर पॉलन सैक में देर आर स्पोरोजीनियस सेल विच आर डिप्लॉइड. So let's have a look over the layers of the anther. So it is epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. Okay. When we talk about the layers, that is 4 layer we saw. तो पहला layer है epidermis. Epidermis is the outermost protective layer and it is made up of tubular cells. When we talk about the endothecium, this layer is subepidermal layer and it is made up of radially elongated cells. These cells are radially elongated which is having fibrous thickening. Layer का main role रहता है protection. It is considered as for protection also. And second role है dehiscence में help करता है, जिसकी मदद से जो हमारा pollen grain जब mature हो जाता है वो easily release हो पाता है anther से. That is from the pollen sac of the anther. We talk about the next layer. It is of middle layer. It is made up of thin wall cell से बना रहता है और ये 1 2 या 3 लेयर रहते हैं, 2 to 3 layered. When we talk about tapetum, तो tapetum is the innermost layer. It is nutritive layer because it provides nourishment to the developing pollen grains. Okay, and it encloses the sporogenous tissue. So this was all about the layers which we saw in the tiers of anther. Now, as the main topic we are discussing here is microsporogenesis and microgametogenesis. तो microsporogenesis when we talk, तो genesis means होता है formation and microspore का formation हम देख रहे हैं. So it is the formation of microspore. कहाँ पे? Inside the microsporangium. We saw कि anther में microsporangium है, bag like structure, that is termed as pollen sac. उसमें पर कौन सा डिवीजन हो रहा है जिससे कि माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा? तो मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. इसमें क्या फॉर्म होगा? गैमेट फॉर्म होगा. ठीक है, तो हमारा माइक्रोस्पोर बन चुका है, उससे पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज मेल गैमेट. सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर. लेट्स सी इन डिटेल. So as we discussed, there is each microspore mother cell divides meiotically divide करते हैं वो to form the tetrad
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो हमने देखा एंथर में जो पॉलन सैक थे, 4 पॉलन सैक थे, हर में स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, स्पोरोजीनियस सेल्स, हम उनको, ये डिप्लॉइड है, हर एक सेल डिप्लॉइड है। तो फॉर नाउ वी आर कंसिडरिंग सिंगल सेल, और जो इस सेल में होगा वही सब सेल में होगा, ठीक है। तो वी कंसिडर द सिंगल पॉलन मदर सेल, दैट इज स्पोरोजीनियस सेल। तो ये पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड है, इट अंडरगोस मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के बाद इट विल बी फॉर्मिंग 4 सेल्स। सो ये 4 सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, टर्म्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, दे आर टर्म्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ लेटर दी सेल्स सब, माइटोसिस डिवीजन के बाद हर एक सेल 2 सेल फॉर्म करती है, विद इन देमसेल्फ दे फॉर्म 2 cells. Now the cells are termed as vegetative cell, the bigger cell is termed as vegetative cell and the smaller cell is termed as generative cell. जनरेटिव सेल जो है उसके पास अभी एबिलिटी है कि तो वो फिर से माइटोसिस डिवीजन कर सके, ओके। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में व्हेन द पॉलन ग्रेन आर 2 सेल स्टेज में रहते हैं तभी वो रिलीज हो जाते हैं। तो हमारा पॉलन ग्रेन अभी 2 सेल स्टेज में है, जैसे कि उसके पास वेजिटेटिव सेल है एंड जनरेटिव सेल है। तो यहाँ पे जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, उसके पास वेजिटेटिव सेल है एंड दिस इज जनरेटिव सेल, एंड हियर वी कैन सी जनरेटिव सेल। हियर वी कैन सी देयर आर 2 डिफरेंट लाइक सेल वॉल है उसके पास, एक एक्साइन है, एक इंटाइन है, इनर वाला। आउटर वन इज नोन एज एक्साइन, ये स्पोरोपोलिनिन से बना रहता है, जो कि एक पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं विथ केमिकल्स और एनी सॉर्ट ऑफ एसिड, जिससे कि पॉलन ग्रेन का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। सो इट इज़ ईजी टू प्रिजर्व, लाइक वो लॉन्ग टर्म जैसा है पॉलन ग्रेन वैसा का वैसा ही रहता है। नाउ द सेकेंड लेयर दैट इज इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, और बीच बीच में ये लेयर्स के देयर आर गैप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये गैप लाइक स्ट्रक्चर जो हैं हम उनको जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर ये क्यों रहता है? बिकॉज जब ये पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करता है, स्टिग्मा पे जाता है, तो दीज 2 मेल गैमेट्स शुड रीच टू द एग दैट इज़ फीमेल गैमेट। तो इसी जर्मपोर से, लाइक जो ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है जर्मपोर से, यहाँ से ही ये मेल गैमेट जो है ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। And in rest of 40%, like it undergoes mitotic division, and when we see now, so there are altogether 3 cells. So it is the 3 cell stage pollen grain, and 40% angiosperm में ये 3 cell stage में release होता है. So this was all about today's topic and hope useful and helpful to everyone. Please hit the like button if it was helpful to you, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.